بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے جی 9 رکوع کا، اور سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ جنگ احد کا میدان کا ذکر ہو رہا ہے، اور جنگ احد میں جو جو معاملات تھے ہم ان سب کو دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً کہیں نہ کہیں ایمان تر و تازہ ضرور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی ہمیں سب کی ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے۔ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے نا، وہاں پر رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، دن رات ان کو دیکھتے تھے، 5 وقت کی نمازوں میں ان کو دیکھتے تھے، تو ان کو بھی جب لگتا تھا کہ ان کے ایمان کمزور ہو رہے ہیں تو پھر وہ واپس ایک دوسرے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے تاکہ ان کے ایمان تر و تازہ ہو جائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ایمان بہت بلند ہے، حالانکہ ہمارے ایمان تو بہت ہی کمزور ہیں۔ ہم تو دنیا داری کے ہر ہر کام میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے اندر تو، ہمارے درمیان میں تو نبی بھی موجود نہیں، ہمارے پاس تو صرف اور صرف ایک قرآن ہے جو ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرنے والا ہے، وہ بھی ہم رمضان میں کہیں اٹھاتے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ تو شاید رمضان میں بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو ایمان کو ہر وقت تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم هم القرح للذین احسنوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا، اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا، یعنی زخمی ہو گئے پھر بھی کھڑے رہے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے بہت بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، تو اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو نا ڈرانا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو جی کافروں نے اتنے بڑے بڑے لشکر تیار کر دیے ہیں، تو ان کا ڈرانا مسلمانوں کے ایمان کو مزید بڑھایا اس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ میرا رب آپ کے لیے اور میرے لیے ہر ہر معاملے کے لیے کافی ہو جائے، میرا پروردگار دنیا اور آخرت کے ہر ہر معاملے کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ جب ہماری زبان کسی بات میں نہیں کھلتی تو میرا رب ہی ہماری ان باتوں کو، معاملات کو سلجھا دے۔ جب ہم اپنی اولاد کی پرورش کرنے پر مشکل میں ہوں تو میرا رب ہی ہماری مدد فرما دے، اور ہماری اولاد کی پرورش کرنے میں ہماری مدد کر دے۔ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو میرا رب ہمیں ان گناہوں سے دور کر دے، صحیح راہ عطا کر دے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانے اپنے لیے ہر معاملے کے لیے کافی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا کہ وہ، یعنی کہ اپنی شکل، شیطان انسان کی شکل آ کے مسلمانوں کے درمیان میں مسلمانوں کو ڈرانے لگا، اور کافروں کے بیچ میں کیا کیا کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے لگا کہ بھئی دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، لڑو 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 لڑو، اور پھر وہ دونوں طرف سے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، تم ان کافروں سے نہ ڈرو، اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، آپ ان سے نہ غم کریں۔ آپ بھی اگر کسی کو بلاتے ہیں نا دین کی طرف، کوئی نہیں سنتا تو آپ کہتے ہیں یہ بھی وہ سنتا ہی نہیں، ہم کیوں بلائیں؟ آپ کا دعوت دینا آپ پر لازم ہے، باقی ہدایت کے رستے پر چلانا میرے رب کے اختیار میں ہے، نہ میں اس پر کوئی اختیار رکھتی ہوں نہ آپ اختیار رکھتے ہیں۔ اگر اختیار ہوتا نا تو آپ سوچئے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے صالحین میں سے تھے، صالحین بندوں میں سے تھے، ان کی بیویاں کفر پر رہیں، ساری زندگی انہوں نے اسلام پر نہیں آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ فرعون جو اتنا بڑا منکر، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو کیا ہی بہترین ایمان عطا کیا۔ یہ تمام خواتین کے لیے میں کہہ رہی ہوں جن کے اگر شوہر سخت مزاج ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی، اور لوگ ان کو یہ تانے دیتے ہیں جی جیسی عورت ہوگی ویسا ہی مرد۔ ٹھیک ہے، وہ جو آئے تھے نا وہ اس کا ترجمہ یہ لیتے ہیں کہ مومن مرد کو مومن عورت، اور مومن مرد کے لیے مومن عورت، اور مومن عورت کے لیے مومن مرد ہے۔ زانی مرد کے لیے زانی عورت، اور زانی عورت کے لیے زانی مرد ہے۔ وہ اس لیے کہا گیا کہ جس کی جو چاہ ہوتی ہے نا اس کو وہ مل جاتا ہے، وہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔
मुमकिन है एक मर्द की बीवी बहुत ही नहायत ही अल्लाह ताला की इबादत गुजार और तकवा तकवा करने वाली हो, और उसका शोहर बहुत बड़ा जानी हो। अब वो क्या है कि वो जानी है, बीवी के साथ तो जाहिर है जना नहीं करेगा ना, लेकिन वो जना के लिए कहीं बाहर औरतें ढूंढ लेगा। और औरतों के साथ भी यही है। अगर शोहर बहुत ही नेक और पाकबाज है, अगर औरत जानी है तो वो कहीं ना कहीं जना के लिए मर्द ढूंढ लेगी। इसका ये हरगिज मतलब ना समझिए कि अगर शोहर बुरा है तो इसका यकीनन मतलब यही है कि बीवी भी बुरी है, और अगर बीवी बुरी है तो इसका यकीनन मतलब यही है कि शोहर ऐसा था तो उसको बीवी ऐसे मिली। तो अल्लाह तो आजमाइश करता है, आजमाता है। हर किसी की आजमाइश मुख्तलिफ है, किसी को औलाद से, किसी को दौलत से, किसी को सेहत से, किसी को माँ बाप से, किसी को ससुराल से, किसी को महके से, किसी को भाइयों से, किसी को भाभीियों से, किसी को देवर से। अल्लाह तो आजमाता ही है। सब्र कीजिए, सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। और सब्र की तलकीन भी कीजिए। जब आपसे कोई मशवरा मांगे तो उसको भड़काइए नहीं कि तुम तो ऐसा भी कर सकते हो, तुम तो ऐसा भी कर सकते हो, तुम्हें क्या जरूरत है। नहीं, सब्र कीजिए, सब्र की तलकीन कीजिए। अल्लाह ताला को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा ना रखे, उनके लिए बड़ा अजाब है। यकीनन जिन लोगों ने ईमान के बदले में कुफ्र खरीदा है वो अल्लाह ताला को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो हरगिज ये गुमान ना करें कि यकीनन हम उन्हें वो जो मोहलत दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। हम उन्हें इसीलिए मोहलत दे रहे हैं ताकि वो गुनाह में और ज्यादा बढ़ जाएं, और उनके लिए रुस्वा कुन अजाब है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि वो मोमिनों को इसी हालत पर छोड़ दे जिस पर तुम हो, यहाँ तक कि वो नापाक को पाक से अलग न कर दे। और कभी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला कि वो तुम्हें गैब की इतला दे। वो समझते थे शायद नबी वसल्लम को गैब की खबर है, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब करता है। तुम अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओ और मुत्तकी बनो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। और जो लोग बुखल करते हैं उसमें जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से दिया, वो हरगिज गुमान न करें कि उनके लिए वो बेहतर है, बल्कि उनके लिए वो बहुत बुरा है। जल्द ही क्यामत के दिन उन्हें इसका तोक पहनाया जाएगा जो उन्होंने बुखल किया। बुखल क्या है पता है आपको? बुखल ये है, जहां खर्च करना है वहां खर्च ना करें, और जहां खर्च नहीं करना वहां दिल खोल कर खर्च करें। ये बुखल है। अल्लाह ताला इस सारे माल दौलत जमीन जायदाद को। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक सेकंड। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द। जमीन और आसमान की मिरास अल्लाह ताला के लिए है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बखूबी वाकिफ है। अल्लाह ताला ने यकीनन उनकी बात सुन ली जिन्होंने कहा कि बिलाशुबा अल्लाह फकीर है। जब अल्लाह ताला ने उनको कहा ना ज़कात का हुक्म दिया, ज़कात अदा करो, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या अल्लाह फकीर हो गया है कि हमसे वो पैसे मांग रहा है? नाउज़ुबिल्लाह। और हम मालदार हैं, जल्द ही हम लिख देंगे जो उन्होंने कहा कि, और उनके उनका नबियों का नाहक कत्ल करना भी, और हम कहेंगे कि तुम जलने का अजाब चखो, ये इस वजह से है जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने, और यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों पर कुछ भी जुल्म करने वाला नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला ने यकीनन हमें हुक्म दिया है कि हम किसी रसूल पर उस वक्त तक ईमान न लाएं यहाँ तक कि वो हमारे सामने अम, ऐसी कुर्बानी कुर्बानी लाए जिसे आग खा ले। आप कह दें कि ए मुझसे पहले रसूल भी तुम्हारे पास वाज़ेह दलीलें और वो कुछ भी ला चुके हैं जो तुमने कहा, फिर तुमने उन्हें कत्ल क्यों किया? क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी तो उस कुर्बानी को आग लग जाती थी। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही डिमांड की कि हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अपनी आंखों से वो ऐसा ना देखें कि आप कुर्बानी कर रहे हैं और उस कुर्बानी को आग लगे। अगर तुम वाकईतन सच्चे हो थे तो तुम उन नबियों पर ईमान ले आते, उनको कत्ल ना करते। फिर अगर वो आपको झुठलाते हैं तो यकीनन आपसे पहले भी कई रसूल झुठलाए जा चुके हैं जो वाज़ेह दलीलें और सहीफे रोशन किताब लाए थे। हर जानदार मौत को चखने वाला है। चखने वाला क्या, जुबान टेस्ट लेगा तो उसकी जुबान पर, उसकी जिस्म पर लॉन्ग टर्म के लिए सरायत कर जाएगा। इसलिए कहा कि मौत का मजा चखने वाला है।
हर इंसान मौत का मजा चखने वाला है। आप जब किसी चीज को टेस्ट करते हैं ना, तो लंबे टाइम के लिए उसको आपको रहती है, यानी कि आपके जिस्म का हर हर हिस्सा उस मौत का मजा चखेगा, सर से लेकर पांव के नाखून तक। जिस्म से रूह ऐसे खींच कर निकाली जाती है जैसे जिस्म के ऊपर कोई मेखों के तख्ते के ऊपर, जो कीलें होती है ना, उनके तख्ते के ऊपर लिटाकर फिर जिस्म को ऐसे जिस्म के ऊपर से खाल को ऐसे उधेड़ कर निकाले। और मैं आपको बताऊं एक मजे की बात क्या है, कि हम खवातीन के सामने या हम मर्दों के सामने कोई जिंदगी में कोई एक आध डेथ हमारी आंखों के सामने होती है, और फिर हम सारों के आगे उसके किस्से बयान करते हैं, जी ऐसे मरा था, ऐसे उसकी मौत आई, वो ऐसे ऊपर उछला, ऐसे नीचे गिरा, और फिर पता नहीं उसको मौत आ ही नहीं रही थी, उसकी उसकी रूह निकल ही नहीं रही थी। और कभी आंखें बंद होती फिर खुलती, कभी सांस टूटती फिर रुकती। आफरीन है उन तमाम डॉक्टर्स पर जिनकी आंखों के सामने कितने ही लोगों की डेथ होती है, वो क्या सारों के आगे वावेले मचाना शुरू कर देते हैं। हम तो किसी की मौत को देखकर उसकी आसानी के लिए दुआ भी नहीं करते, बल्कि किस्से कहानियां बना लेते हैं और सबको बताते फिरते हैं। हालांकि नज़ा की हालत बड़ी सख्त है। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस नज़ा की सख्तियों को देखा। लेकिन मेरे नबी ने कह दिया कि अगर तुम नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद, अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हो, तो तुम्हारे लिए नज़ा की सख्तियां आसान कर दी जाएंगी। और फिर तुम्हें जन्नत में दाखिल होने से तुम्हारी और जन्नत के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ मौत का वक्फा है। सुभान अल्लाह। कि मौत आई तो तुम जन्नत में दाखिल होगे, और यकीनन तुम क़यामत के दिन ही अपने पूरे अजर दिए जाओगे। चनाचे जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। यकीनन तुम अपने मालों और अपनी जानों में जरूर आजमाए जाओगे, और यकीनन तुम उनसे जरूर बहुत तकलीफ देह बातें सुनोगे, जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिरक किया। और अगर तुम सब्र करो और मुत्तकी बनो, तो यकीनन ये बुलंद हौसला के कामों में से है। सब्र करो, सब्र करो, मेरे रब ने बार बार कहा सब्र करो। ये बहुत बड़े काम है, बड़े बुलंद कामों वाले हैं, बड़े हौसले वाले काम है सब्र करना। और जब अल्लाह ताला ने उन लोगों से पुख्ता अहद लिया जिन्हें किताब दी गई, तो कि तुम उस किताब को लोगों के सामने जरूर बयान करते रहोगे, और तुम उनको उसको नहीं छुपाओगे, जो तो उन्होंने उस अहद को अपनी पुश्तों के पीछे डाल दिया। आज हम भी क्या करते हैं, कुरान को लपेट कर ऊपर शेल्फ पर रख देते हैं। हम भी बिल्कुल वही कुछ कर रहे हैं। जब हमें किसी मसले की जरूरत पड़ती है, तो फिर उलमा के पास भागते हैं, दौड़ते हैं। तो कुरान तो अब हम सब के घरों में मौजूद है, खुद क्यों नहीं पढ़ के सीखते। इसके बदले उन्होंने बहुत थोड़ी कीमत ले ली, सो कितना बुरा है जिसको वो खरीद रहे हैं। आप उन लोगों को हरगिज ख्याल ना करें जो खुश होते हैं उन कामों पर जो उन्होंने किए, और चाहते हैं कि उन पर भी उनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने नहीं किए। आप उन्हें अजाब से निकलने में हरगिज कामयाब ख्याल ना करें, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। तमाम बादशाहत का मालिक मेरा रब ही है। यकीनन आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन के बदलने में अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब रात छाती है तो रोशनी की कोई भी किरण बाकी नहीं रहती, और जब सुबह होती है तो अंधेरे का कोई हल्का सा नुक्ता भी बाकी नहीं रहता। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी ये जमीन को अल्लाह यकदम ही रोशन कर देता है, इतनी बड़ी जमीन को अल्लाह यकदम ही अंधेरे में बदल देता है। फिर भी अल्लाह ने अंधेरे में भी चांद और तारों का बंदोबस्त किया कि कहीं मेरा बंदा अंधेरों से घबरा ना जाए। वो लोग जो वो जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे भी अल्लाह ताला को याद करते हैं, और आसमानों और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। हम गौर व फिक्र कब करेंगे, जब अल्लाह ताला के कलाम को समझेंगे तो गौर व फिक्र करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए हमारे रब, वो क्या कहते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। तो वो जब गौर फिक्र करते हैं और कहते हैं कि ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। देखिए ये जो दरख्त हैं, चरिंद परिंद, ये हशरात, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं बनाई।
اور پھر وہ کہتے ہیں پاک ہے اللہ تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ جو آخری آیات ہیں نا، 10 آیات ہیں جو سورہ آل عمران کی، یہ بڑی ہی اہم ترین آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے تو روزانہ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے بلا ناغہ۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ سبحان اللہ! کہ فوت کرنے موت بھی مانگی تو کیا مانگی؟ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے ہمارے رب جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، کیا کہ مومنوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، وہ عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ آمین۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، عورتوں کو ہوا کہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا صرف مردوں کو ہی صرف اجر و ثواب دے گا، عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے اور جنہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے ساری برائیوں کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی معاف کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے رجسٹر کو پاک صاف کر دے گا، صرف اور صرف اچھے عمل ہوں گے۔ اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں لوگوں کے پاس لینڈ کروزرز اور بہت ساری مال دولت اور بہت بڑی بڑی گاڑیاں، دولت مرتبہ سب کچھ ہے، اور گھر بھی بڑے بڑے آپ کے پاس، آس پاس گھروں کے باہر باہر بہت بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں دنیا کی رنگینیاں دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متاع متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کس کا ٹھکانہ کیا کرے گا، اور وہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ بچھونا کیا ہوتا ہے؟ جو نیچے بستر بچھا کے آپ سوتے ہیں نا، نرم نرم گدے پر، وہ جہنم کی آگ ان کا بچھونا ہوگی۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ڈرنے والے اپنے اپنے ہر عمل کو، اپنی ہر بات کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے، نزولا من عند اللہ۔ سبحان اللہ! میرا رب ہمیں بھی جنت میں اپنی میزبانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اپنی والدین کی میزبانی کرے، ان کی بہترین مہمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ جو مومنین اور مومنات دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو۔ ہمارے لیے مقابلے کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ مورچے کیا ہیں؟ وہ ایمان کا حصار جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ڈٹا لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
अच्छा जी, यहाँ पर कोई मिस्टेक है। यहाँ पर सूरह फातिहा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये सूरह निसा है। ये इसके अंदर टाइपिंग कोई मिस्टेक है। ठीक है जी, ये सूरह निसा का आगाज होता है, और देखते हैं कि बड़ी ही अहम तरीन सूरा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हम औरतों को कितना ही शर्फ अता किया कि अल्लाह ताला ने हमारी औरतों के नाम पर, अल्लाह ताला ने निसा का नाम पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा को नाजिल कर दिया। पूरे कुरान के अंदर कहीं भी मर्दों के नाम पर कोई सूरा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरतों के लिए, औरतों के नाम पर अल्लाह ताला ने एक सूरत को नाजिल कर दिया, निसा। क्योंकि इस सूरा के अंदर ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादातर जो बातें हैं, वो औरतों के बारे में की गई हैं। इसलिए इस सूरा का नाम भी, और औरतों के मसाइल का जिक्र ज्यादा किया गया है, इसलिए इस सूरा का नाम सूरतुन निसा है। और हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। बड़ी ही अहम तरीन सूरा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो हम सिर्फ इससे गो थ्रू होंगे, लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश जरूर करूंगी कि सूरतुन निसा को जरूर थॉरली पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और उसी से उसकी बीवी पैदा की, और उसने उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए। और अल्लाह ताला से डर कर रहो, जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। अल्लाह ताला के वास्ते से, यानी कि तुम अल्लाह की वजह से ही तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और अल्लाह ताला से डरते रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो। फिर अल्लाह ताला ने कहा, और रिश्तेदारी को बिगाड़ने से भी डरो। बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर हमेशा हमेशा से पूरा निगहबान है। और यतीमों को उनके माल दे दो, और नापाक को पाक से ना बदलो। यानी लोग क्या करते थे कि यतीमों के माल को अपना अपना बुरा वाला माल यतीमों के माल के साथ मिला लेते थे, और फिर उस माल को उनसे बदल कर वो क्या करते थे कि माल ले लेते थे, यतीमों का माल खुद खा लेते थे। अच्छा वाला खुद ले लेते, बुरा वाला उनको दे देते। और उनके मालों को अपने मालों के साथ मिलाकर ना खाओ, यकीनन वो हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें डर हो कि यतीमों के हक में इंसाफ ना कर सकोगे, तो दूसरी औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए, दो दो और तीन तीन। यानी कि वो क्या करते थे, यतीम औरतों से शादियां, लड़कियों की कफालत करते, और फिर उन्हीं लड़कियों से शादियां कर लेते, क्योंकि फिर उनको उनका हक मेहर नहीं देना पड़ता था, जायदाद के भी वारिस बन जाते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम उन औरतों के साथ, उन यतीमों लड़कियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर उनके अलावा किसी और औरतों से शादी कर लो। दो दो और तीन तीन और चार चार के साथ निकाह करो। सो अगर तुम डरो कि तुम अदल ना कर सकोगे, तो एक ही से निकाह करो। फिर अगर अदल नहीं कर सकते, तो एक ही औरत से निकाह करो। या वो जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हों, यानी लोंडियां, ये ज्यादा करीब है कि तुम इंसाफ से ना हटो। बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि एक पर काफी इक्तफा कर लो। और औरतों को उनके मेहर खुश दिली से अदा कर दिया करो। फिर अगर वो इससे इसमें से कोई चीज तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुश हो जाए, तो तुम इसको खाओ, मजेदार खुशगवार है। और ना समझो को अपने वो माल ना दो जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कायम रहने का जरिया बनाया, जरिया मईशत दिया। और तुम उन्हें खिलाओ और पहनाओ, और उनसे भली बात करो। अगर कोई फैमिली में कोई कमजोर है, तो तुम उनको उनकी मदद कर दो, लेकिन अपना अपना कारोबार उनके हवाले ना कर दो। लेकिन खिलाने पिलाने के बाद उन पर हर वक्त एहसान न जतलाते रहो, भली बात कहो। और यतीमों को जानते जांचते रहो, यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र पहुंच जाए, यानी बालिग हो जाए। फिर अगर तुम उनमें समझ बूझ महसूस करो, तो उनके माल, यानी कि वो मुआशरती तौर पर माशी को समझने के काबिल हो जाएं, तो फिर उनके माल उनके हवाले कर दो। और इस डर से कि वो बड़े हो जाएंगे, उनका माल फजूल खर्ची से जल्दी करते हुए ना खाओ। और जो मालदार है तो लाजिम है कि वो बचे, वो यतीम का माल ना खाए। और जो मोहताज है तो लाजिम है कि वो मारूफ तरीके से खाए, यानी ये नहीं कि रोज मुर्गन खाए, यानी मारूफ भले तरीके से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, चनाचे जब तुम उनका माल उनके हवाले करने लगो, तो उन पर गवाह बनाओ। यानी जब उनको वापस लौटाने लगो, तो गवाह बना कर लौटाओ। और अल्लाह ताला ही हिसाब लेने वाला काफी है। मर्दों के लिए एक हिस्सा है उसमें से जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार तरके में छोड़ जाएं। एक हिस्सा मर्दों के लिए, और औरतों के लिए भी अल्लाह ने कहा कि उनके लिए भी एक हिस्सा है, जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार तरके में छोड़ जाएं। उसमें से जो थोड़ा हो या ज्यादा हो, थोड़ा सा माल हो वो भी, और ज्यादा से ज्यादा हो वो भी, मुकर्रर किया हुआ हिस्सा ही अल्लाह ने मुकर्रर किया है। और जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मोहताज आ जाएं, तो उन्हें भी उस माल में से कुछ दो, और उनसे भली बात करो। और लाजिम है कि डरें जो वो लोग जो अगर अपने पीछे कमजोर औलाद छोड़ जाते हैं। अब अल्लाह से डरें कि वो वसीयत को ना बदलें,
जिसका जो हक है उसको पूरा पूरा दें, और उनके बारे में वो डरते। चनाचे उन पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला से डर जाएं, और लाजिम है कि वो सीधी बात ही कहें, अपनी मर्जी से वो बातों को बदल बदल कर ना करें। बिलाशुबा वो लोग जो यतीमों के माल जुल्म से खाते हैं, वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते, और जल्द ही वो दहकती आग में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला तुम्हें औलाद के बारे में, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है। अब वो वसीयत क्या है तरके के बारे में, कि मर्द के लिए दो औरतों के बराबर हिस्सा है, फिर अगर औरतें दो से ज्यादा हों तो मैयत ने जो छोड़ा हो उसमें से दो तिहाई उनके लिए हिस्सा है, टू थर्ड। और अगर वो अकेली हो तो आधा तरका उसके लिए है। आधा तरका किसके लिए? उस औरत के लिए। अगर एक ही बेटी है तो आधा तरका उसके लिए है। और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए छठा हिस्सा, माँ के लिए भी सिक्स और बाप के लिए भी छठा हिस्सा, उसमें से जो उसने छोड़ा। अगर उसकी औलाद हो तो माँ बाप को छठा छठा हिस्सा दिया जाएगा। फिर अगर उसके लिए औलाद ना हो, यानी जो मर गया उसकी औलाद ना हो, और उसके वारिस उसके वालिदैन ही हों, तो उसकी माँ के लिए एक तिहाई यानी वन थर्ड हो कर दिया, बढ़ा दिया। फिर अगर उसके बहन भाई भी हों तो उसकी माँ के लिए छठा हिस्सा है। इस वसीयत के बाद जो वो कर जाए, या कर्ज के बाद तुम्हारे बाप हों, अगर बाप हों या तुम्हारे बेटे, तो तुम नहीं जानते। अब अल्लाह ताला ने ये क्यों सारों की इससे मुकर्रर किए, कि अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाते हैं कि तुम नहीं जानते कि उनमें से नफा पहुंचाने में तुम्हारे ज्यादा करीब कौन है। कि आखिरत का नफा क्या है, आखिरत का ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ है। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। और जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं उसमें से तुम्हारा आधा हिस्सा है, अगर उनकी कोई औलाद ना हो। फिर अगर उनके लिए औलाद हो, बीवी की अगर औलाद है, तो उसमें से फिर शोहर का हिस्सा कितना है? चौथाई। टू का फिर कम कर दिया, फोर्थ पार्ट कर दिया, जो उन्होंने छोड़ा है। अब कोई समझे कि ये क्या बात है जी, टू है तो फोर्थ कर दिया तो कम कैसे हो गया? जैसे आप पिज्जा खाते हैं तो उसको आप चार हिस्सों में बांटेंगे, तो पिज्जे के दो हिस्से करेंगे तो दो हिस्से बड़े होंगे ना। जब चार हिस्सों में पिज्जे को बांट देंगे तो हिस्से छोटे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने छोड़ा है इस वसीयत के बाद जो वो कर जाएं, या कर्ज की अदायगी के बाद, और उनके लिए चौथाई हिस्सा है उसमें से जो तुमने छोड़ा। अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है कि और उन औरतों के लिए बात हो रही है, और उनके लिए उनके उनके लिए चौथाई है। वसीयत किसकी हो रही है अब? और उस वसीयत के बाद जो वो कर जाएं, या कर्ज की अदायगी के बाद, वह तरक नाम। अब औरत की बात हो रही है, तो औरत के लिए चौथाई हिस्सा है उसमें से जो तुमने छोड़ा। अगर तुम्हारी कोई औलाद ना हो, मर्द मर गया, बीवी को मिल रहा है तो चौथाई हिस्सा होगा। फिर अगर तुम्हारे लिए कोई औलाद हो तो उनमें उनके लिए आठवां हिस्सा है। किसके लिए? बीवी का आठवां हिस्सा है। पहले फोर पार्ट्स किए थे, अब उसको उसके मजीद पार्ट्स कर दिए, एट पार्ट्स कर दिए, आठ पार्ट, आठ हिस्से कर दिए, तो मजीद इसका मतलब क्या कि छोटा हिस्सा मिला उसको, जो तुमने छोड़ा औरत के लिए। इस वसीयत के बाद जो तुम कर जाओ, यानी वसीयत क्या है? वो जो अपना हिस्सा है ना, वसीयत में आप सारा माल किसी को नहीं दे सकते। जो आपका अपना, जो मैयत का अपना हिस्सा है ना, वो आप यतीमों, मिस्किनों या किसी को भी दे सकते हैं। या कर्ज की अदायगी के बाद बदकिस्मती से हम अपना हिस्से की वसीयत करते ही नहीं, हम कहते हैं सारा जी औलाद को दे दो। तो अपने लिए भी कोई वसीयत कर जाया कीजिए, या कर्ज की अदायगी के बाद। और अगर कोई मर्द जिसका विरसा विरसा लिया जा रहा है ऐसा है कि जिसके ना माँ बाप है और ना औलाद है, या वो कोई औरत हो और उसके लिए एक भाई या एक बहन हो। पहले वारिस कौन है? माँ बाप या औलाद। फिर उसके बाद अगले वारिस आते हैं भाई और बहन। तो दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है, बहन के लिए भी और भाई के लिए भी। फिर अगर वो बहन भाई इससे ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे, यानी कि सबको वन थर्ड दिया जाएगा। वसीयत के बाद जो की जाए, या कर्ज की अदायगी के बाद, बशर्त ये कि किसी को नुकसान ना किया गया हो, किसी की हक तलफी ना की गई हो। अल्लाह ताला की तरफ से वसीयत है, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और निहायत बुर्दबार है। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा वो उसे जन्नतों में दाखिल करेगा। ये अल्लाह ने हदूद कहते हैं कि ये मेरी हदूद हैं, इससे बाहर कोई ना निकले। जिसके नीचे से नहरें जारी हैं और उनमें वो हमेशा रहने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा, अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। और उसके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करें, उन पर अपने में से चार मर्दों की गवाही लो। अपने पास ही ना मन घड़त बातें करो, बल्कि मर्दों की गवाही भी मर्दों की, क्योंकि औरतें फितना ज्यादा करती हैं। फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन्हें घरों में बंद रखो।
यानी अपनी आंखों से किसी ने देखा हो। और एक और बात भी क्या है कि मर्द बाहर घूमते फिरते हैं तो उनको नजर आ जाए, लेकिन अब औरतों की जो है वो नजरें ज्यादा होती है, मोहल्ले में भी, अड़ोस पड़ोस में भी, हर तरफ। यहां तक कि उन्हें मौत उठा ले। पहले ये उस वक्त हुक्म था जबकि ये हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं भेजा था कि उनकी सजा क्या हो, तो उनको कैद कर देने का हुक्म था, जब तक कि उन औरतों को मौत ना आ जाए, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल कर उनको कोई रास्ता, कोई सबब बना दे। और तुम में से जो भी दो अफराद बदकारी करें, उन दोनों को सजा दो। यानी कि दो अगर मर्द जो अगर हैं, दो अफराद, दो लोग जो हैं आपस में बदकारी करें, या अतियानिहा मिनकुम फआजूहुमा, उन दोनों को सजा दो। फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से बेहद तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला पर तौबा का कबूल करना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नादानी से बुराई करते हैं, फिर जल्द ही उससे तौबा करते हैं, तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला मेहरबान होता है। और अल्लाह ताला हमेशा ही से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। और तौबा ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम करते जाते हैं, हत्ता कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है वो कहता है कि बिलाशुबा अब मैंने तौबा की। और ना ही उनकी तौबा है जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर हैं, यानी मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होगी। और जो काफिर मरते हैं उनकी भी तौबा कबूल नहीं होती। यही लोग हैं जिनके लिए हमने बहुत दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। ये क्या था कि जो बेवा हो जाएं या जो यतीम हो जाएं, उन औरतों की जबरदस्ती वारिस बनकर बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम जबरदस्ती किसी के वारिस बनकर बैठ जाओ। तुम जबरदस्ती किसी के वारिस नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तुम उनका माल समेटना चाहते हो। अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम जबरदस्ती किसी के वारिस ना बन जाओ। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि और ना ही तुम उन्हें रोको कि जो तुमने उन्हें दिया है उसका कुछ हिस्सा उनसे वसूल करो, मगर ये कि वो खुली बेहयाई करें। जिनकी, वो जो औरतें हैं, अगर तुम्हारी बीवियां हैं, अगर वो बेहयाई करती हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा और उनके साथ अच्छे अंदाज में, हाँ, अगर वो बेहयाई करती हैं तो फिर तुम उनसे अलहदगी इख्तियार करो और उनके साथ अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारो। फिर अगर तुम उन्हें नापसंद करते हो तो हो सकता है कि तुम जिसको नापसंद करो और अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी रख दी हो, यानी आपको हो सकता है आपकी बीवी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मुमकिन है तुम्हें पसंद नहीं तुम्हारी बीवी, लेकिन क्या मालूम अल्लाह ताला ने तुम्हारी औलाद के लिए तुम्हारी बीवी को उसके हक में कितना अच्छा कर रखा है। इसलिए हो सकता है उसमें क्या खैर है तुम नहीं जानते। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी बदलने का इरादा कर ही लो अगर, और तुमने उनमें से एक को खजाना तक दे दिया हो, अपने सारी खजाने कुंजियां दे दी हो, तो भी उससे उसमें से तुम कुछ वापस ना लो, क्या तुम्हें उससे बुहतान लगाकर और खुला गुनाह करके वापस लोगे? हम कहते जी बेहया थी, हाँ, वो बच्चलन थी तो सारा कुछ वापस ले लेते हैं। और तुम वो कैसे ले सकते हो हालांकि तुम एक दूसरे से सोहबत कर चुके हो? यानी तुमने वो सारा कुछ हक महर और वो सारा कुछ तुमने अपनी जिस्मानी लज्जत को पूरा करने के लिए तोहफतन दिया था। अल्लाह ताला कहते हैं हालांकि तुम वो कैसे ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे मजबूत अहद भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे निकाह ना करो, मगर जो पहले हो चुका, यानी कि जिन्होंने पहले ऐसे कर लिया, तो अल्लाह ताला कहते हैं चलो वो तो हो गया, लेकिन उनको भी फिर छोड़ दो। वो तुम्हारी जिन जो तुम्हारी बाप का निकाह हो गया वो तुम्हारे लिए हराम हो गई। यकीनन वो हमेशा से बेहयाई और सख्त नाराजगी की बात है और बहुत ही बुरा रास्ता है। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुफ्फियां और तुम्हारी खालाएं और भाई की बेटियां और बहन की बेटियां और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और जात में तुम्हारी बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएं और तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाली वो लड़कियां जो तुम्हारी उन बीवियों से हों जिनसे तुमने सोहबत की है, यानी कि बीवी के पहले शोहर से हैं, वो भी हराम है। माशरा हमारा ऐसा है कि हम अगर किसी बेटी की शादी करना चाहें जिसकी बेटी पहले से हो, तो हम वो बेटी आगे दे नहीं सकते। हमें भरोसा ही नहीं, क्योंकि हमारे अमल इतने गंदे हैं। फिर अगर तुमने उनसे सोहबत नहीं की तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सल्ब से हैं, तुम्हारे सुल्ब से हैं, यानी तुम्हारे बेटों की जो बीवियां हैं ना, जो तुम्हारे अपने बेटे, मुंह बोले बेटे नहीं, जो तुम्हारे अपने बेटे हैं, जो तुम्हारे अपने नुत्फे की औलाद है,
उनकी बीवियां भी तुम पर हराम हैं। और ये कि तुम इकट्ठा कर दो दो बहनों को, मगर जो पहले हो चुका, यानी कि वो दो बहनों को एक निकाह में भी रख लेते थे, लेकिन जो पहले हो चुका, और फिर बाद में जब ये हुक्म आया तो फिर उन्होंने, अगर किसी के घर दो बहनें थी तो उन्होंने एक को तलाक दे दी। यकीनन इन अल्लाह काना गफूर और रहीमा, अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों की मगफिरत फरमाए, हम सबको ईमान और तकवा नसीब फरमाए। जो गलती कोताही हो गई हो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे, हमसे दरगुजर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्की अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।